میرے تایا زاد فرحان بھائی اعلیٰ عہدے پر تھے۔ ان کو مہاجبیں ایک شادی میں پسند آئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ رشتہ طے ہوا اور پھر منگنی ہو گئی۔ دونوں اس رشتے سے بے حد خوش تھے، مگر شادی سے کچھ دن پہلے اچانک مہاجبین کا میری تائی کو فون آیا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ ہم سب تیار ہو کر نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک لڑکی کے والد کا فون آ گیا کہ ابھی شادی نہیں ہو سکتی۔ جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میرے ایک ہی تایا تھے جن کا نام فیروز تھا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تائی بھی بہت اچھی عادت کی تھی۔ ان کی اور میری امی کے سلوک کی خاندان والے مثال دیا کرتے تھے۔ کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دیورانی اور جیٹھانی ہیں۔ دونوں میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ تائی ہر بات میری امی سے شیئر کرتی تھیں اور ان سے مشورے سے ہی کوئی فیصلہ کرتی تھیں۔ ہمارے تایا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی بیٹیوں کا بھی ہم سے بہنوں جیسا ہی پیار تھا۔ یوں ہم رہتے تو الگ الگ گھروں میں تھے، لیکن ہم میں پیار سگی اولاد جیسا ہی تھا۔ ہمارے تایا فیروز کے بیٹے کا نام فرحان تھا۔ وہ ہمارے خاندان میں سب سے بڑے کزن تھے اور ہم سے ایک بڑے بھائی کی طرح ہی محبت کرتے تھے۔ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ فرحان بھائی بہت لائق اور قابل تھے۔ ہم جب ان کے گھر جاتے وہ ہر وقت پڑھائی میں مشغول رہتے تھے، لیکن جتنا بھی وقت ملتا ہم سے بہت اپنائیت سے ملتے۔ انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا تو ان کی بطور آفیسر ملازمت ہو گئی۔ ان کی ملازمت کے 3 سال بعد تایا تائی ان کے رشتے ڈھونڈنے لگے کہ بیٹے کے سر پر سہرا دیکھیں۔ خاندان میں تو ہر ایک انہیں رشتہ دینے کو تیار تھا کہ وہ آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھے، مگر فرحان بھائی کو کوئی لڑکی پسند ہی نہ آتی تھی۔ پہلے تو تایا اور تائی نے خاندان کی کئی لڑکیوں کے رشتے ان کے سامنے رکھے، مگر وہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ کر انکار کر دیتے تھے۔ پھر تایا اور تائی باہر غیروں میں لڑکیاں دیکھنے لگے۔ کئی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں ان کو پسند بھی آئیں، مگر فرحان بھائی جب ان کو دیکھتے تو انہیں پسند نہ آتی۔ آخر ایک روز تایا ان سے پوچھنے لگے کہ اگر تمہیں خود کوئی لڑکی پسند ہے تو اپنی پسند سے ہمیں آگاہ کر دو، تاکہ ہم یوں کسی کی بیٹیوں کو رد نہ کرتے پھریں اور ہماری بھی مشکل آسان ہو۔ مگر ان کی خود کی بھی کوئی پسند نہ تھی۔ تایا ان کے رشتے کے سلسلے میں کافی پریشان تھے اور آخرکار مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ انہی دنوں ہمارے خاندان میں ایک شادی آ گئی۔ یہ شادی ہماری پھپھو کی بیٹی کی تھی، لہٰذا ہم نے اور تایا کی فیملیوں نے جانا تھا۔ مہندی والے دن ہم اکٹھے ہی پھپھو کے گھر پہنچ گئے۔ اگلے دن بارات تھی۔ بارات میں دلہا والوں کی طرف سے ایک لڑکی سب میں نمایاں تھی جو بے حد خوبصورت تھی اور شاید دلہا کی قریبی عزیز تھی۔ فرحان بھائی نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو جیسے وہ ان کے دل کو بھا گئی۔ اب پوری شادی میں فرحان بھائی کی نظر کا مرکز وہی لڑکی تھی۔ شادی ختم ہو گئی اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے، مگر گھر آ کر انہوں نے اپنی والدہ کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ مجھے وہ لڑکی پسند ہے، اگر اس کا کہیں رشتہ وغیرہ نہیں ہوا تو ان کے گھر رشتے کی بات چلائیں۔ ایک طرف تو تائی خوش ہوئیں کہ چلو بیٹے کو کوئی تو لڑکی پسند آئی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ کہیں اس لڑکی کی منگنی وغیرہ یا رشتہ نہ طے ہو چکا ہو۔ اگلے ہی روز تائی نے پھپھو کو کال کی اور اس لڑکی کے بارے میں معلومات دینے کو کہا۔ پھپھو نے کہا کہ میں بھی زیادہ تو نہیں جانتی، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ نعمان کی ماموزاد ہے۔ نعمان پھپھو کا داماد تھا جس کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ پھپھو کہنے لگی میں مہین سے معلومات لے کر آپ کو بتاؤں گی۔ یوں پھپھو نے مہین باجی سے ساری تفصیلات لے کر تائی کو آگاہ کیا۔ اگلے ہی ہفتے تایا اور تائی رشتہ لے کر ان کے گھر گئے۔ امید تھی کہ لڑکی کے ماں باپ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ فرحان بھائی تایا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت اور صاحب جائیداد بھی تھے۔ ایسے رشتے بقول ہمارے والدین قسمت سے ملتے ہیں۔ اس لڑکی کا نام مہاجبیں تھا۔ مہاجبیں کے والدین تایا لوگوں سے بہت خوش اخلاقی سے ملے اور انہوں نے بھی انکار نہ کیا اور سوچنے کا وقت مانگا، لیکن ان کے رویوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ بے حد خوش تھے، لہٰذا انہوں نے اگلے ہی روز تایا کو فون کر کے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ فرحان بھائی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تایا تائی کی بھی ایک بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی منگنی کی تاریخ دے دی گئی۔ تائی نے امی کو فون کیا کہ تیاری رکھو،
जल्द मैं कार्ड भिजवा दूंगी, लेकिन खुशी की खबर जी चाहा सबसे पहले तुम्हें ही सुनाऊं। अब सब ने एक खुशी भरी खूबसूरत तकरीब में जाना था, वो भी फरहान भाई की मंगनी में, जिनको सभी दिलो जान से अजीज रखते थे। बड़ी धूमधाम से तैयारियां की गईं। मंगनी वाले दिन पहले सब ताया के घर जमा हुए, फिर बहुत सी कारें कारवां की सूरत में लड़की वालों के घर पहुंची। रस्म मंगनी की तकरीब उन्होंने घर पर रखी थी। उनका घर बड़ा और सहन काफ़ी कुशादा था। खूबसूरत शामियाने तले स्टेज सजाया गया था और बरकी कमकमों से सारा घर जगमगा रहा था। हम सब भी बहुत एहतमाम से तैयार होकर गए थे, मगर महाजबी जब स्टेज पर आई तो जैसे जितनी रोशनियाँ और कमकमे थे सब मांद पड़ गए। लगता था कि सितारों के झुरमुट में चांद निकल आया है। उसने बहुत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में उससे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी है। उसके गोरे गोरे नाजुक हाथों में मेहंदी और सुनहरी चूड़ियाँ खूब सज रही थीं। महाजबी की रंगत गैर मामूली ताबनाक और पलके लंबी रुखसारों पर झालरों ऐसी थी। आंखें झुकी हुई थी और वो किसी की जानिब नहीं देख रही थी। अलबत्ता उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। हमारे जितने भी लोग मंगनी पर गए थे सभी लड़की के हुस्न की दाद दे रहे थे कि वाकई अगर फिरोज़ ने काफ़ी टाइम लगाकर बेटे का रिश्ता ढूंढा था तो वो वाकई नज़र भी आ रहा था। महाजबी पूरी मंगनी में काफ़ी खामोश थी, शायद कि वो शर्मा रही थी। हर कोई उसके हुस्नो संगार की जानी मुतवज्जा था। मंगनी की रस्म बड़े एहतमामो इंसराम से अदा होगी और मेहमान पुरतकल्लुफ़ खाना तनावल करने के बाद अपने अपने घरों को चले गए। रस्ते भर भी सभी लड़की की सूरत के गुण गाते रहे। मंगनी के बाद फरहान भाई हमारे घर आए तो हमने उनके गिर्द घेरा डाल दिया और मिठाई मिठाई का कोर्स शुरू कर दिया। वो भी बहुत खुश थे। पहले तो हमें तंग करते रहे कि कैसी मिठाई, मिठाई तो तुम लोग मुझे खिलाओ, मगर फिर उन्होंने ढेर सारी मिठाई मंगवा कर हमारी फरमाइश को पूरा किया। हमें गाड़ी में बिठाकर सैर कराने को ले गए और फिर रेस्टोरेंट से खाना भी खिलाया। मैंने उससे पहले कभी उनको इतना शाद ना देखा था। दिल से दुआ करने लगी, खुदा करे वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें। और कितना ख्याल रखते थे वो हमारा, हर एक की खैर चाहने वाले, हर किसी के छोटे से छोटे मसले से बाखबर रहकर उनको हल करने वाले। मैं तो सोचती थी कि खुदा ऐसा भाई सबको दे। अभी इस खुशी के झोंके को गुजरे एक हफ्ता हुआ था कि ताई घबराई हुई हमारे घर आई। मैं अभी कॉलेज से आई थी और यूनिफॉर्म उतार कर खाना खाने लगी थी। वो अम्मी के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें करने लगी, जिन्हें मैं सुन तो ना सकी, लेकिन ताई के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी परेशान हैं। उनको परेशान देखकर मेरा दिल धड़का कि खैर हो। जब मैं उनके करीब गई तो वो अम्मी से कह रही थी, महाजबीन का फ़ोन आया था कि आंटी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकती। मैं बाद में आपको फ़ोन करूँगी या फिर आप जब फ्री हो मुझे कॉल कीजिएगा। मैंने पूछा कि कोई ज़रूरी बात करनी है क्या बेटी? उसने जवाब दिया, हाँ आंटी, बस मेरी ज़िंदगी का सवाल है। और फिर उसने कॉल काट दी। तभी मैं बेहद घबरा गई हूँ कि आखिर ऐसा उसने क्यों कहा। तभी मैं इधर चली आई कि भरा परा घर है, घर में तो बात नहीं हो सकती। अगर लड़की ने कोई ऐसी बात कह दी कि मेरे दिल पर असर हो गया तो मुझे कोई संभालने वाला तो हो। अम्मी ने तसल्ली देते हुए कहने लगी, अल्लाह खैर करे भाभी, कैसी बातें करती हो? क्या पता लड़की ने वैसे ही कोई बात कहनी हो, उसने बरी के सिलसिले में कोई कहनी हो कि लड़कियों की सो पसंद नापसंद होती है। आप तो बस ऐसे ही घबरा रही हैं। ताई कहने लगी, मगर उसने कहा है मेरी ज़िंदगी का सवाल है, कोई मामूली बात तो नहीं ना हो सकती। जाने क्यों मेरे दिल में खटक सी हो रही है। मेरा बेटा तो अपनी मंगनी से इतना खुश है कि मुझे डर सा लगने लगा है कि खुदा खैर करे, कहीं हमारी खुशी को किसी की नज़र न लग गई हो। मैंने भी उन्हें हौसला दिया कि खुदा ना करे ताई जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसी बातें मत सोचिए, अल्लाह ताला के फजलो करम से सब खैर ही होगी। वो मुझसे कहने लगी, अच्छा तुम महाजबीन को फ़ोन तो मिलाओ, आखिर मैं पूछूं तो सही कि क्या बात करना चाहती है वो मुझसे। मैंने कमरे से मोबाइल लाया और उन्हें नंबर बताने को कहा। उन्होंने एक कागज़ का पुर्जा मुझे पकड़ा दिया जिस पर नंबर दर्ज था। अम्मी ताई से कहने लगी कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ताई ने कहा कि नहीं नहीं, चाय रहने दो, तुम बस मेरे पास बैठो। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि लड़की अपनी मंगनी से मुस्तरिब है और वो ऐसी ही कोई बात कहना चाहती है। मेरी छठी हिस्स भी उस वक्त यही कह रही थी। खैर मैंने उनके दिए नंबर पर फ़ोन मिला दिया। फ़ोन महाजबीन नहीं उठाया था। मैंने ताई को मोबाइल पकड़ाया। वो कहने लगी, हाँ बेटी महाजबीन, कैसे हो, बोलो क्या कहना है। महाजबीन आगे से कहने लगी, आंटी मुझे समझ नहीं आ रही
कि मैं आपसे कैसे बात करूं। मैं जानती हूँ कि आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ही मेरी बात सुन लेते तो आंटी मैं आज आपको तकलीफ़ ना देती, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। दरअसल मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। ये मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। ये सुनते ही ताई का रंग फुक हो गया। वो कहने लगी, क्यों बेटी, मेरे बेटे में क्या कमी है? माँ जबी आगे से कहने लगी, कोई कमी नहीं आंटी, आपके बेटे में कोई कमी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो मुझे नापसंद है, बल्कि ये वजह है कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और वो मेरा तायजाद है। मेरी मंगनी पहले मेरे वालिदैन ने इब्रार से ही की थी और ये उनकी रजामंदी से हुई थी, मगर अब अचानक ये बंधन तोड़कर मेरी अम्मी अब्बू ने आपके बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगर उन्होंने ऐसा ही करना था तो फिर इब्रार से मेरी मंगनी ही क्यों की? ये मंगनी भी उनकी अपनी पसंद से थी। उस वक्त तो मैं नासमझ थी, तब मेरे लिए ये सिर्फ मेरे वालिदैन की पसंद थी, मगर अब तो हमारी मंगनी को 8 साल हो चुके थे और 8 वर्ष काफ़ी होते हैं किसी को दिल में बसाने के लिए। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात रासिक हो गए, तो अचानक उन्होंने हमारी मंगनी तोड़कर आपकी तरफ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे आपसे ये बातें करते अच्छा तो नहीं लग रहा कि इससे मेरे वालिदैन की बेइज्जती है, मगर जब वालिदैन को ही अपनी बेटी की खुशी मंजूर नहीं तो मैं भी अब मजबूर हो गई हूँ। मैंने खुद से उनको मनाने की बहुत कोशिश कर ली है। मैंने आपकी तरफ रिश्ते से पहले अपनी अम्मी से हाथ जोड़कर कहा था कि ऐसा नहीं करें, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूँगी। आखिर को मंगनी तोड़ने की कोई वजह भी तो नहीं है। मेरा तायजाद इब्रार बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसका कसूर ये है कि वो एक मामूली नौकरी करता है और आपका बेटा ऑफिसर है। तायाबू आप लोगों की तरह अमीर नहीं हैं। पहले रिश्ता करते वक्त तो मेरे वालिदैन को उनकी गुर्बत नज़र न आई। आंटी आप बताएं, क्या मामूली नौकरी पे होना या अमीर ना होना कोई जुर्म है जिसकी सज़ा अब इतने सालों बाद मुझे मिल रही है, जबकि हमारे दिल एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं? ये इंसाफ की बात नहीं है कि मेरे दिल में कोई और बसा है और मैं दुल्हन बन जाऊं किसी और की। मैं अम्मी अब्बू से कह चुकी हूँ कि मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है अपने मंगेतर के सिवा, लेकिन वो मेरी बात को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। मैं अब अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मायूस होकर आपसे बात कर रही हूँ। प्लीज़ अब आप ही हमारी खुशियों को उजड़ने से बचा लें, वरना मैं भी उम्र भर दुखी ही रहूँगी, आपका बेटा और खुद आप भी। उस लड़की ने एक सांस में अपने दिल की भड़ास निकालकर बगैर ताई का जवाब सुने ही फ़ोन रख दिया। और ताई बेचारी आगे से क्या कहती, वो तो साकित और हैरत की तस्वीर बनी हुई थी। उन्होंने फ़ोन मुझे पकड़ाया और जैसे उसी जगह साकित हो गई। अम्मी दौड़कर पानी ले आई। भाभी क्या हुआ, क्या कहा माँ जबी ने ऐसा कि आप इतनी परेशान हो गई हैं? मैं चूँकि फ़ोन से बहुत करीब थी, मेरी हिस्से समात भी तेज़ थी। फ़ोन से मुझे माँ जबी का एक एक लफ्ज़ साफ सुनाई दिया था। अम्मी से मैंने कहा, फ़िलहाल आप ताई से कुछ ना पूछिए, मैं आपको बता दूंगी। हमने ताई को सहारा देकर उठाया और फिर कमरे में लिटाया। मैंने उनको सुकून की गोली खिला दी, चाय दी और कहा कि आप सो जाइए ताईजान, अभी आप आराम करें, बाद में सोचेंगे जो करना होगा। इस वक्त आपको सुकून की ज़रूरत है, बस कुछ मत सोचिए और सोने की कोशिश करें। ताई के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उन्होंने आंखें मौन ली थीं। शाम को फरहान भाई उनको लेने आ गए। वो अम्मी से कहने लगे, चची देखा आपने, हमारी वालिदा भी कमाल की खतून है। घर में मामू मुमानी आए हुए हैं, ये उनको छोड़कर यहाँ आकर सो रही हैं। अम्मी बोली, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक ना थी, वहाँ बच्चों का हंगामा और शोर था, तभी इधर आकर सुकून करने को लेटी थी, मगर फिर सो गई। अभी ताई जान जाग चुकी थी। उन्होंने फरहान भाई को देखा तो चेहरे पर गम की घटा सी छा गई, मगर समझदारी से जब्त कर गई। बेटे को कुछ ना बताया, वो फरहान भाई के साथ चली गई। मैं दुआ करने लगी, खुदा करे सब ठीक हो जाए और कोई बड़ा मसला ना हो। घर जाकर ताई ने ताया को सूरत हाल से आगाह किया। वो भी परेशान हो गए, मगर उन्होंने हदायत की कि फ़िलहाल तुम मुँह से कोई भी बात मत निकालना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। पहले लड़की के वालिद से बात कर लेने दो, बाद में ही कोई फ़ैसला करेंगे। वो बहुत शरीफ लोग हैं। लड़कियां तो होती ना समझ हैं। माँ बाप ने अगर कोई फ़ैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। हमें पहले उसके वालिद से बात करनी चाहिए ताकि हालात का कुछ पता तो चले। अभी तुम फरहान को बिल्कुल इस बात से आगाह मत करना। ताया अगले ही रोज़ माँ जबीन के बाप से जाकर मिले।
वो बेचारे बारेश बुजुर्ग थे। जब ताया ने सारी सूरत हाल बताई कि आपकी बेटी का तो यहाँ तक कहना है कि मेरे वालिदैन सिर्फ आपके बेटे का ओहदा और मर्तबा देकर मेरी शादी वहाँ कर रहे हैं, उसके अलावा भी तमाम बातें उनके गोशे गुजार की, तो वो हाथ जोड़कर बेटी की नादानी पर माफ़ी तलब करने लगे। कहने लगे, भाई साहब आप शरीफ लोग हैं, मैंने बस आपको देखा है, आपकी दौलत को नहीं देखा। आपका बच्चा मेहनती है तभी तो वो आला मुकाम तक पहुंचा है, और बेशक हर वालिदैन अपनी औलाद का भला ही सोचते हैं। बेशक इब्रार मेरे भाई का बेटा है और मुझे अजीज़ भी है, लेकिन मैं उसकी नालायकी का क्या बताऊं। मैंने अपने भाई की खातिर उसे बेटी का रिश्ता तो दे दिया था और यही सोचा था कि आज नहीं तो कल लड़का भी बरसरे रोज़गार हो ही जाएगा। पहले तो वह कई साल फारिग घर में ही बैठा रहा। जब वालिद ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि अब तुम अपनी जिम्मेदारी लो, कुछ कमाओ वगैरह, फिर ही तो हमने तुम्हारी शादी करनी है, वो कहने लगा कि ये मुलाजमतें वगैरह मुझसे नहीं होती, मैं तो कारोबार ही करूँगा। उसके वालिद साहब ने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दी कि कारोबार कर लो। उनका कहना था कि अभी बड़े से स्टार्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें कारोबार का तजर्बा भी नहीं है, ऐसे में नुकसान कर बैठोगे। मगर इब्रार का कहना था कि मैं कोई छोटा मोटा कारोबार तो करूँगा ही नहीं, मैं बड़े से ही स्टार्ट करूँगा। यूँ उसकी ज़िद के आगे उसके वालिद ने हार मान ली। उसने भाई साहब की जायदाद बिकवाई और कारोबार शुरू किया, और फिर कुछ ही माह में सब पैसे बर्बाद कर डाले। भाई साहब को उसने कम्मे लड़के ने कंगाल कर डाला, अभी तक मेहनत से जी चुराता है। इब्रार सही होता तो मैं क्यों मंगनी तोड़ता, बल अपना खून किसे प्यारा नहीं होता। उसे मंगनी मैंने बहुत सोच समझ कर तोड़ी है, और मेरे बड़े भाई भी मुझसे नाराज़ नहीं हैं। आपने देखा कि वो महाजबीन की मंगनी में भी मौजूद थे। वो अपने बेटे के करतूत जानते हैं, इसलिए उनको मलाल नहीं है, और वो मुझसे नाराज़ भी नहीं हैं। भाई साहब आप माफ़ कर दें महाजबीन को, वो नासमझ है। इस उम्र में बच्चियाँ नादान और जज्बाती होती हैं। गर्ज उस बेचारे बूढ़े आदमी ने इतनी लजा कर माजरत की कि ताया भी परेशान हो गए और बोले, भाई साहब मैंने इस बात को दिल पर नहीं लिया और ना बेटे से अभी तक तज़किरा किया है। जो फैसला आप करेंगे वो मुझे कबूल होगा। आप आज हर पहलू से सोच लें और बेटी से भी पूछ लें, फिर फ़ोन पर आगाह कर दें। अगर रिश्ता बरकरार रखना है तो मैं उसे खुदा की रज़ा समझकर कबूल कर लूँगा। आगे जो हमारे बच्चों की किस्मत में होगा, लेकिन आपको रंजीदा नहीं करूँगा। 2 दिन बाद महाजबीन के वालिद का फ़ोन आया कि महाजबीन राज़ी है, मैं चाहता हूँ आप रिश्ता न तोड़ें। मेरे ताया ताई भी ये रिश्ता न तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनका बेटा महाजबीन से मंगनी पर बहुत खुश था। अल्लाह पर अच्छी उम्मीद रखकर उन्होंने शादी की तारीख दे दी। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। ताया लोग खूब धूमधाम से बेटे की भरी और दीगर तैयारियों में लगे थे। शादी में अभी 3 रोज़ बाकी थे कि जब हम मेवा पहुंचाने और ढोलकी पर फरहान भाई के घर गए। अभी घर से कुछ दूर थे कि कानों में रोने की आवाज़ें आने लगी। तशवीश हुई कि अल्लाह जाने क्या हो गया है ऐसा कि ताई इस कदर रो रही हैं। घर के अंदर डरते डरते कदम रखा। ताई और उनकी बेटियों को रोते पाया। वालिदा ने ताई से पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने रोते हुए मेरी वालिदा को बताया कि अभी अभी महाजबीन के अब्बू का फ़ोन आया कि महाजबीन फौत हो गई है। फरहान भाई उस वक्त शादी के लिए कोई सामान लेने गए हुए थे। हम सभी ये सुनकर सकते में रह गए। हमारे और ताया के घराने की खुशियाँ और गम साझे थे, सो हमने पहले तो उन्हें तसल्ली वगैरह दी, फिर बाद में मेरी अम्मी अबू भी ताया लोगों के साथ हो लिए। मैं भी अपनी कज़न्स के साथ गाड़ी में बैठ गई और यूँ हम लड़की वालों के घर पहुँचे। जब घर के अंदर गए तो महाजबीन की माँ और दीगर रिश्तेदार औरतें भी रो रही थीं। मेरी अम्मी को एक औरत ने पूछने पर बताया कि बहन लड़की इस शादी पर रजामंद ना थी, जबकि 3 दिन बाद उसकी शादी थी। वो रिश्ता ख़त्म करने के लिए काफ़ी कोशिश करती रही, मगर किसी ने उसकी बात पर कान न धरे। कहा कि अब तो कार्ड भी बट गए हैं, अब हमारी इज्जत का सवाल है। सबका यही ख्याल था कि लड़की अभी जज्बाती है, शादी के बाद आप ही नई ज़िंदगी को कबूल कर लेगी तो साबका मंगेतर को भी भूल जाएगी। मगर शायद ये और तरह की लड़की थी। महाजबीन की माँ तो रोते रोते बेहोश हो गई। फूफियाँ और बहनें भी अब कफ़े अफसोस मल रही थीं और बहन कर रही थी कि हाय हमने उसकी बात क्यों ना समझी, काश समझ लेते तो आज मेरी महाजबीन जान से न जाती। अब हम किससे ताज़ियत करते, जबकि वहाँ तो किसी को कोई होश ही ना था। पड़ोसन औरतें अलबत्ता आपस में कयास आराइयाँ कर रही थीं, कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ। तभी मेरा दिल भर आया और मेरी भी आंखों से आंसू बह निकले। सोचा वो बेचारी हर किसी से फरियाद करती रह गई।
मगर किसी ने उसकी ना सुनी और आज सभी उसके सामने फरियाद कना है और वो खामोश चारपाई पर लेटी सभी को रोता और बिलखता सुन रही है। हम बहुत भारी दिल से घर आए थे। फरहान भाई आगे एक बुत के मानिंद सोफे पर बैठे थे। मैंने सोचा कि उनसे बात कैसे करूं। मेहरबा लब उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई और फिर वो अजखुद गोया हुए, आशी क्या हुआ था माजबीन को? तब मैंने फरहान भाई के कानों में बात डाल दी कि जो हकीकत थी और उन्हें अभी भी मालूम ना थी। वो कहने लगे, ए काश तुम ही मुझे बता देती। अगर ऐसी बात थी तो मैं खुद ही ये रिश्ता ख़त्म कर देता। न जाने क्यों आप सब ने मुझे लाइल में रखा। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। वे कहने लगे, मैं उससे क्या ज़बरदस्ती शादी कर लेता? मैं एक तालीम याफ्ता इंसान हूँ, जानवर तो नहीं कि बाजिद हो जाता कि वही शादी करनी है या कम करता। अरे भाई, हर इंसान को अपनी खुशी हासिल करने का हक है। मुझे पता होता तो मैं कभी ये नौबत ना आने देता। ए काश वो मुझे ही फ़ोन करके बता देती तो ये नौबत ना आती। मैंने ना बताया कि उसने ताई जान को फ़ोन करके इल्तिजा की थी, मगर उन्होंने इस डर से आपको ना बताया कि कहीं आपको दुख ना पहुँचे। तहाँ मैंने ये ज़रूर फरहान भाई से कहा, भाई वहाँ किसी ने भी खुदकशी का जिक्र नहीं किया। अब क्या मालूम उसके अचानक फौत हो जाने का सबब क्या था। मौत की वजह तो किसी को नहीं मालूम। मौत तो बेवजह भी आ सकती है कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। इसका बिल्कुल भरोसा नहीं कि चलते चलते एक बज़ाहिर सेहतमंद आदमी सड़क पर या किसी जगह गिर जाता है और रूह निकल जाती है। मुमकिन है कि उसे कोई मर्ज़ लाहक हो या उसका अचानक हार्ट फेल हो गया हो या कि उसकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका हो। इंसान जवानी में भी तो मर जाते हैं। बस अब आप उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें और इस बात को अल्लाह की रज़ा समझें। फरहान भाई ने मेरी इस बात का जवाब न दिया। उठकर घर से बाहर चले गए। इस वाक़े के 1 साल बाद जब फरहान भाई की शादी का कार्ड मिला तो मैं सोच में पड़ गई। वो मंजर मेरी आंखों में फिरने लगा जब माँ जबी स्टेज पर फरहान भाई के साथ बैठी थी। उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी चमक रही थी, मगर चेहरा उदास लग रहा था। किसी ने भी उस वक्त नोट ना किया कि इस पूरे तबनाक चांद को गहन तो नहीं लग रहा। दौलत तो आनी जानी शय है, लेकिन ज़िंदगी एक अनमोल शय है जो सिर्फ एक बार मिलती है। आज फरहान भाई की शादी के कार्ड तो फिर से छप गए, लेकिन जाने वाली माँ जबी वापस नहीं आ सकती कि ये अटल हकीकत है कि जो इस जहाँ से चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आज फरहान भाई की शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी के साथ खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायद कि उन्हें माँ जबी कभी याद भी ना रहे, मगर माँ जबी के वालिदैन की गलती से और दूसरा मेरे ताया ताई से अनजाने में तो गलती होगी, जिसके सबब वो चांद से चेहरे वाली लड़की जान से चली गई। जबकि फरहान भाई की तो कहीं और भी शादी हो ही जाती, जैसे कि अब हो चुकी है। मगर शायद कि उस लड़की के नसीब में ही ये सब था। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो सब बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।